چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس من حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ وجیلنس زانکاری ہفتہ حوالہ جموں کشمیر مز تقریباً یوتسان سول سیکٹریٹ سری نگر مز تقریب عمر عبداللہ کابینہ وزیرو تو انتظامی کیو افسرو شرکت محکمہ تعلیمی ہند کام کار مزید بہتر بنانے حوالہ سرکار سنجیدہ خالی اسامہ تو ٹرانسفر پالسی یہ انقریب برو کن سکینہ یتو تو شہر پسند عنصرو طرف جموں کشمیر ہند امن امان خراب کرنچ کوشش رلت ملت یم کوشش ناکام بناونے روندر رینا تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل سری نگرس میں آز ایل جی منوج سنہا سند صدارتس مز بہلہ پائی میٹنگ یوت سان کرنا آمت یت مز چیف سیکرٹری تو پولیس کیو بہلہ پائی افسرو علاوہ کشمیر صوبہ کیو ایس ایس پیزو تو ضلع ترقیاتی کمشنرو شرکت کر میٹنگ دوران یہ موجود صورتحال حوالہ کتن دل دن آو تت ایل جی منوج سنہان میٹنگ مز موجود تمام افسرن ونمت زِ امن قانون صورتحال برقرار تھاؤن باپت گژھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ قدم تُلنہٕ یُن یُتھ زن نہٕ پُرامن ماحول خراب کرنُک کٲنٛسہِ تہِ اجازت دِنہٕ یی تاہم چھُنہٕ أزچہِ میٹنگ منٛز تہِ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ شریٖک کرنہٕ آمٕتۍ وجیلنس زانکاری دہ کس موقع پہ آج سول سیکٹریٹ سری نگرس مز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کابینہ وزیرن تو انتظامی کین افسرن حلف دتمت زِ تم گژھن سرکاری محکمن مز رشوت خوری ختم کرنس حوالہ تو پنن فرائض دیانتداری سان انجام دنس حوالہ چک سان کام کرن یُتھ زن سہ مقصد پورٕ سپدی یم باپت یہ دہ مناونہٕ چھُ یوان promote ethical business practices, and foster a culture of honesty and integrity. We shall not offer or accept bribes. We commit to good corporate governance based on transparency, accountability and fairness. We shall adhere to relevant laws, rules and compliance mechanisms in the conduct of business. We shall adopt a code of ethics for all our employees. We shall sensitize our employees of laws, regulations, etc. Relevant to their work for honest discharge of their duties. We shall provide grievance redressal and whistleblower mechanism for reporting grievances and fraudulent activities. We shall protect the rights and interests of stakeholders and the society at large. یپر عمر عبداللہ امہ پتہ میٹنگ دوران کابینہ وزیرن تو انتظامی کین بہلہ پائی افسرن ونمت زِ نئی دلی مز تمن حالیہ ملاقات دوران یقین دہانی کرنا آمت زِ جموں کشمیر ہندین لوکن ست کرنا آمت وعدہ یی پورٕ کرنہٕ تو جموں کشمیر سرکارس یی مرکزی سرکار طرف پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مدد کرنہٕ We have taken a pledge, and that pledge must mean something. Our word must count for something. The citizens of Jammu and Kashmir, through the media and wider social media, will see us taking this pledge. And therefore tomorrow, if any one of us
indulges in practices that go against the pledge that we have taken, essentially we are saying that our word counts for nothing. That we will say one thing and do something entirely different. And therefore it is my earnest appeal to everyone, those who are present, those who are unable to be present here, that we must, as we have pledged here, we must lead by example. We can only stop our subordinates from doing something wrong if we ourselves are honest in our conduct. And therefore, if I am dishonest in my conduct, I can't expect my cabinet ministers to be honest. If I can't expect them to be honest, they can't expect you. And if we can't expect you to be honest, we can't expect your subordinates. And therefore, it starts with me. I aim to lead by example. I intend my honorable cabinet colleagues to follow that example. And in turn, I expect you to follow the example they set and your subordinates to follow your example. Ordinarily, I would tell you in no uncertain terms that there is zero tolerance for this. And as far as I'm concerned, there is. But I'm also acutely aware that we have, unfortunately at the moment, a rather hybrid system of operating. And I have a feeling, and I'm going to say this regardless of the consequences, some may feel that they can exploit this system to their advantage. That they can find loopholes in this system that we have in J&K at the moment. But please, rest assured, this is very much a temporary phase. I have just come back from very successful meetings in Delhi. I have received assurances at the highest level that the commitments made to Jammu and Kashmir, particularly with regard to our governance model, will change. And therefore, if there is anybody who believes that somehow the fact that we are a UT will shield you from the consequences of practices that go against this pledge, please remember, the shield may last temporarily, but it is only temporary. And that once full statehood is restored to Jammu and Kashmir, there will be no loopholes to exploit or any advantages to be taken by playing one against the other. So please keep that in mind as we now conduct ourselves over the course, because this is an annual thing. खबरनामा में तुंद दुबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील महकमे इतला किस दफ्तर श्रीनगर मज आज अमे हवाले तकरीबी हूं सांस करना आमुत यथ मज डायरेक्टर इतलात कश्मीर अलाव महकम के मुलजमो शिरकत कर अत मौके पे हलफ तुलना आव ज रिश्वतखोरी हूं खात्म तो पन फरज दयानतदारी सान अंजाम दिन बापत रोजन मुलजिम पन फरज अंजाम दिवान तज अहद करना आमुत ज महकम कामकार मजीद बेहतर बनाने सवाल ये चुकसान काम करने We will not offer or accept bribes. We commit to good corporate governance. We commit to good corporate governance Based on transparency, accountability, and fairness. We shall adhere to relevant laws, rules, and compliance mechanisms. एंटी करप्शन ब्यूरो कश्मीर तरफ आज श्रीनगर मज विजिलेंस जानकारी हफ्तस हवाले प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ मज एंटी करप्शन ब्यूरो के जिम्मेदारों तो मुख्तलिफ महकमन हिंदो अहदारों अलाव लूको शिरकत कर अत मौके पे तकरीब मज मौजूद लूकन रिश्वतखोरी तो दोमन मामलन हवाल रोट लागनस हवाले जान दिन आई तज जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज पूरे हफ्तस रोज यन तकरीबन हूं सांस जारी युद्ध जन अत पे मुकम्मल जान लूकन दिन यी कोई आंसर नहीं है, ये भी सिर्फ स्मार्टफोन। लेकिन अक्सर 28 से लेकर के और 3 नवंबर तक विजिलेंस वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है और 31 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ एनिवर्सरी आता है और उसको भी इसी के बीच में इनकॉर्पोरेट किया गया और इस बार का जो थीम रखा गया है द कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी, ये इसका पूरा विजिलेंस वीक का थीम है। ऐसे तो पूरा विजिलेंस का जो प्रोग्राम है ये 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 15 नवंबर को ये कल्मिनेट होना है।
बट स्पेशली जो 1 वीक है ये स्पेशल फोकस दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कवर करने के लिए। तो आज जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा है इसमें जितनी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके ऑफिसर्स ऑफिशियल्स प्लस वहाँ पर जितने एप्लीकेंट्स आते हैं, किसी को ग्रीवांसेस हैं, ऐसे लोगों को शामिल करके जो उनके इश्यूज हैं उनको भी सुनना और जो विजिलेंस के एंगल से कुछ हम उनकी हेल्प जो कर सकते हैं वो भी उनको बताना, ये प्रोग्राम है। So what is all about this Kahoot app? Is it something? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल बंडपुरिस में आज तकरीब साज कर आमुत यथ मज वजीर तालीम सकीना यतू मेंबर असम्बली हिलाल अकबर लोन कॉलेज इंतजामिया तो तलब इल्मो शिरकत कर अत मौके पे ये वजीर मौसूफन ऑडिटोरियम हालस इफ्तिताह कोर तब तमो वोनमुत तलब इल्मन मयारी तालीम फराहम करने सत बुनियादी ढांचे मजबूत करने हवाले कदम तुलने युत जन तलब इल्मन मयारी तालीम फराहम करने मज आसानी सपदे यल जन तमो वोन महकमे तालीम हुंद कामकार मजीद बेहतर बनाने हवाले यह जल्द ट्रांसफर पॉलिसी तरसीब दिन युत जन तम सारी खदशात दूर करने यम जन माहिर तालीम वालिदैन तो दोयमन लूकन मज वुचन यवान। आज का यहाँ ये जो ऑडिटोरियम अभी बना हुआ है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग कॉलेज की, इसमें जो लाइब्रेरी की जो फैसिलिटी हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। हम चाहते हैं बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर सकें और उनके पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जो उनको तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा रोल अदा करवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर सकते हैं। मेन आज यहाँ आने का रीज़न यही था। नहीं, अभी तो हम कर रहे हैं एग्ज़ाम, ये सही बात है। कॉलेजेस तो हमारे पास बहुत है, कहीं कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, कहीं कहीं स्टाफ पे बहुत ज़्यादा कमी है। जब आपके पास स्टाफ अवेलेबल नहीं होगा, पढ़ाने वाले उस्ताद अच्छे नहीं होंगे, अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे जो तालीम होगी वो आगे बढ़ सकेगी। इस पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम इसको देखेंगे, जहाँ जहाँ कमियां हैं उन कमियों को पूरा किया जाएगा, चाहे वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ज़रिए जो रिक्रूटमेंट्स होनी है, जो वैकेंसीज़ हैं उनको फिलअप करना है, या जो प्रमोशन के थ्रू हमारी वैकेंसीज़ हैं उनको फिलअप करना है। और पॉलिसी बाज़ाब्ता बनाई जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि मेरी सिफारिश किसी को होगी तो उसको आसान पोस्टिंग मिल जाएगी। जिस तरह रैशनलाइजेशन होगा, जिसका जहाँ पे टाइम ज़्यादा होगा उसको वहाँ से निकाला जाएगा और जिसको ज़्यादा कम टाइम जो हुआ है उसको वहाँ पे लाया जाएगा। और जो ये रैशनलाइजेशन है ये बहुत ज़रूरी है, उसको किया जाएगा इंशाल्लाह, और जो चीज़ें करनी होंगी वो हम करेंगे। नाज़रीन, खबरनामा में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। मेंबर असम्बली खानियार अली मोहम्मद सागरन आज जवाहर लाल नेहरू हस्पताल रहनवारी, गौसिया हस्पताल खानियार तो महाराजगंज हस्पताल दौर कोर्मुत, यार दौरान तमो काम कार जायजा हेत। अत मौके पे ये अली मोहम्मद सागरन मरीजन खबर अतर हज तब तमो मुतलिक जिम्मेदारन सत तबादुल ख्याल तुर्मुत। यार दौरान तमो जिम्मेदारन वोन हस्पतालन मज गसन मौकूल इंतजाम करने युत जन और इन वालन लूकन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। अत मौके पे ये हस्पताल जिम्मेदारों तरफ कया मामल तो मसल वतलावन आय तब अली मोहम्मद सागरन वोनमुत यम मसल अंजरावनस हवाल यम सरकारस ताम वातन युत जन जल्दी यम मसल अंजरावन इन तो आम लूकन राहत वाते। मेन जो बेसिक फैसिलिटी है वो हमें लोगों को देनी है। उस सिलसिले में ये बड़ा अहम इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ एंड एजुकेशन। शेर कश्मीर के वक्त से इसकी प्रायोरिटी थी, ये बड़े अहम शोबे हैं। तो उस सिलसिले में जो इनकी ये कहते हैं जो 10 साल 12-15 साल पहले हमने स्टार्ट किया वही है, कैसे चलेगा। 200 बेड हॉस्पिटल बन रहा है, तो क्या वो फैसिलिटी नहीं। ये जो गवर्नमेंट ने LG ने बैन लगाई थी नौकरियों पर, उसकी वजह से इनका ये सफ़र कर रहे हैं। और जो लोगों जो इंटरनल इनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको भी देखना है। तो उस सिलसिले में मैंने इनको यकीन दिलाया, मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा वो खुद ही आएगी यहाँ और इनके जो मसाइल उसको हल, क्योंकि ये एक बड़ा ड्यूरिंग सैलाब फ्लड में इस हॉस्पिटल ने बड़ा अच्छा काम किया। पीपल आर अप्रिशिएटिंग दिस हॉस्पिटल, नो डाउट। सो मैं इनकी बात करूँगा, चाहे असेंबली कोई भी फोरम हो, इनकी वकालत करूँगा ताकि लोगों के मसाइल हल। तो क्या क्या प्रायोरिटी रहेगी इसके बाद, क्योंकि पेशेंट्स अभी जिस तरह से हम सुन रहे थे पेशेंट्स के लिए लिफ्ट और बाकी जो सहूलियात वो इन्हें किया है। लिफ्ट दूसरा लिफ्ट आएगा वो JKPC के पास पैसा है, आज से 15 साल पहले 97 लाख। पूछने वाला कोई नहीं था डिपार्टमेंट होगा, वो उन्होंने किया नहीं दिया वापस। लिहाजा हम इसकी प्रायोरिटी देंगे और मरीजों को कुछ
प्रॉब्लम थी, उसके लिए डॉक्टरों की कुछ कमी थी, वो ठीक। मेंबर असेंबली खान साहब सैफुद्दीन भट्ट सिंध सदारतस मज आज दुध पथर मज अफसरन हिंज मीटिंग हंद साज कर आमुत यथ दौरान तमाम महकमन हंद काम कारक जायजे हन आव अत मौकस पे ये मेंबर मौसूफ जिम्मेदारों तरफ काम कार हवाले जान दिन आई तथ अफसरन बांध बांध कर आमुत तम गन पन फरज तुक सान अंजाम दिन युत जन आम लूकन त राहत वात। आज इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी और इस पर तमाम अफसरान को बुलाया था कि कहाँ पे क्या बजट कंपोनेंट है आपके पास, व्हाट आर द प्लान्स ऑफ दिस एरिया। सब डिपार्टमेंटों की जितनी भी ऑनगोइंग वर्क जो कंप्लीट हुई है और जो नए काम उठाने हैं और लोगों को कौन से मसाइल हैं, जैसे कि पानी के मसाइल, पानी, बिजली, फायर, लकड़, बहुत सारे मसाइल जो लोगों के 8 सालों से मुश्किलात है, उन पर आज टेम्पररी डिस्कशन एक हुआ और उनको हिदायत दी गई कि हमें ये गवर्नमेंट का एजेंडा जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए आप लोगों को और लोगों की खिदमत करनी चाहिए, वो जो पहले हुआ करता था। और लोगों के लिए दरवाजे खुला रखो, आम लोगों के लिए मीटिंगे इस मत कहा करो, सिर्फ काम करो और लोगों के काम आए। मेंबर असेंबली शांगस एडवोकेट रियाज अहमद खान सिंध सदारतस मज आज डाक बंगला अनंतनागस मज अफसरन हंद जायजे मीटिंग हंद साज कर आमुत यथ मज तमाम महकमन हंदो अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे ये हल्का इंतखाब शांगस तमीर तरक्की तो लुकन दरपेश मुश्किलन हवाले कथन दल दिन आव तथ मेंबर मौसूफन अफसरन वोनमुत ज तम गन फरज तुक सान अंजाम दिन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस मज आसानी सपदे। बड़े खुशगवार माहौल में मैंने रिव्यू ले लिया और मुझे जानकारी मिली कि कौन सी डेवलपमेंट वर्क्स शांगस अनंतनाग ईस्ट में करने जा रहे हैं, व्हाट आर नेक्स्ट प्लान्स टू बी एग्जीक्यूटेड। मुझे हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है और अगली रिव्यू में जो आज हमने डायरेक्शंस पास किए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए अगला रिव्यू फिर हम करने जा रहे हैं। तो बिजली पे आपने ज़्यादा फोकस देने की बात कही है, तो इस हवाले से बताइए। क्योंकि जो कमिंग विंटर्स है इसमें हमें तजुर्बा है कि लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसीलिए मैंने उनको प्रिपेयर्डनेस के लिए बोला है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज ये विंटर्स में और आज से ही बिजली का अच्छा निज़ाम हो, जहाँ जहाँ उनको कमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए वो मेरे साथ रब्ता करें, मैं गवर्नमेंट के साथ ये सारे इश्यूज़ उठाऊँ ताकि लोगों को राहत महसूस। मेंबर असेंबली देवसर फेरोज अहमद सिंध सदारतस मज आज डाक बंगला चुवलगाम कोलगमस में जायजे मीटिंग साज कर आमुत यथ दौरान तमाम महकमन हंद काम कारक जायजे हन आव। मीटिंग दौरान ये हल्का इंतखाब देवसर तमीर तरक्की हवाले कथन दल दिन आव तथ मेंबर मौसूफन वोनमुत लूकन राहत वातनावनस हवाले यी प्रेथ कह कदम तुलने युत जन आम लूकन मजीद मुश्किल व्यतरन पेन। और आपकी वसत जो प्रोग्राम देख रहे हो सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने पहले तहसील लेवल अफसरों की मीटिंग ली थी खबरनामा रेस्ट हाउस में, रिव्यू मीटिंग थी हमारी, तो वहाँ पे भी हमने उनको हिदायत दी है कि यहाँ की जो सरकार है लोगों की सरकार है, जो लोगों को उम्मीद है इस सरकार पे, तो आपको लोगों की खिदमत के लिए काम करना है। तो वहाँ के जितने भी यहाँ अफसर आए थे उन्होंने पूरा मेरे साथ बैठ के उन्हें पूरा सपोर्ट दिया कि जो सरकार का प्रोग्राम है वो जो लोगों की उम्मीदें हैं हम उन पे खड़ा उतरेंगे। तो हमने इनको ये कहा कि हमने जो लोगों से वादे किए हैं और जो खासकर गरीब आपके पास आते हैं, ये गरीब कभी जब ये अफसरों के पास आते तो आधे गरीब ऐसे भी होते हैं जिनको किराया भी नहीं होता है, वो कहीं से किराया लाते हैं उधार, तो फिर आपके पास पहुँचे तो आपको उनकी कदर करनी चाहिए गरीबों के। तो जो भी गरीब आपके पास पहुँचेगा सबसे प्यार बेस में उनका काम होना चाहिए और किसी को धक्का नहीं देना है, सबकी कदर और इज़्ज़त करनी है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपकी वसादत से सरकार के तमाम लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकार आपकी सरकार है, हमारा जो चीफ मिनिस्टर जनाब गौरव साहब है, जो उसने लोगों से वादा किया है, जो हमारा मंशूर है, इंशाल्लाह ताला हम उसका वादा बंद है और हम लोगों की कदर करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे। और हम किस्मत वाले हैं, कुलगाम तहसील
कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैबिनेट में एक अच्छा हमें नुमाइंदगी मिली है मैडम सकीना साहिबा, ऑनरेबल मिनिस्टर सोशल वेलफेयर, हेल्थ और एजुकेशन, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो नाजरीन अचित वोत कशर खबरनामा 9 बजे सपद तह सत बे मुलाकात, फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।